بتائیں کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث دہشت گردوں کی گرفتاری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ پولیس نے زمان پارک سے فرار ہونے والے مزید 6 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور پر حملوں میں ملوث پائے گئے تھے۔ سی سی پی او لاہور بلا صدیق کمیانہ کے اس متعلق کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد، جو 9 مئی واقعہ تھا اس میں ملوث شرط پسند عناصروں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ کل 8 ایسے مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا تھا، جس کا پولیس نے باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا، اور آج ایک اس میں اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ لاہور پولیس نے گزشتہ رات زمان پارک سے فرار کی کوشش میں مزید 6 شرط پسند عناصر جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا ہے، اور جو حراست میں لیے گئے گرفتار کیے گئے ہیں ان میں 4 عسکری ٹاور اور جبکہ 2 کورٹ کمانڈر ہاؤس جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے اس میں ملوث افراد شامل ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ پولیس نے کل 2 دن سے زمان پارک کو اپنی جو ہے وہ تمام ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور وہاں پر کوئی بھی ایسا شخص جو مشکوک جانا جاتا ہے اسے روکا جاتا ہے اور اس سے تحقیقات کرنے کے بعد وہاں سے جانے دیا جاتا ہے۔ تو 6 مزید ایسے افراد ہیں جن کو حراست میں لے لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 4 جو ہیں وہ عسکری ٹاور کے حوالے سے مصروف تھے، جبکہ 2 کور کمانڈر ہاؤس حملے میں جو ہے وہ ملوث تھے، ان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے۔ جی ٹھیک ہے مجاہد، ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کی تحقیقات جاری۔ پی ٹی آئی کارکنوں اور عہدیداروں کے گرد مزید گھیرا تنگ۔ 500 کے قریب کارکنوں عہدیداروں کی فہرستیں متعلقہ تھانوں کو جاری کر دی گئی ہیں۔ فہرست میں شامل افراد کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا آغاز آج رات سے ہوگا۔ مزید بتائیں گے مجاہد لطیف۔ بتائیے مجاہد اس بارے بھی۔ ہاں جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں اور عہدیداروں کے خلاف جو ہے وہ پولیس کی جانب سے مزید گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ورکروں، چیئرمین اور کونسلرز پر مشتمل ایک فہرست جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ترتیب دی گئی ہے، جس میں تقریباً 500 کے قریب سرگرم کارکنوں، چیئرمینوں اور کونسلروں کی فہرست متعلقہ تھانوں کو جاری کر دی گئی ہے۔ فہرست میں شامل افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا آغاز آج رات سے ہی دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور فہرستوں میں افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس افسران کو ٹاسک فورس جو ہے وہ ایک نام دیا گیا ہے اور خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس میں سی آئی اے کی خدمات جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہیں، اے وی ایل ایس ونگ جو ہے پولیس کا اس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، آپریشن اور انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ بھی اس میں مددگار ثابت ہوگا، اور ان کی فوری گرفتاری کے لیے ٹیمیں جو ہیں وہ بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ فہرستوں میں شامل 21 کونسلر شاہد عباس جوہر ٹاؤن سے، اظہر حسین اور محمد سرور جو ہے وہ بھی ایکس چیئرمین کے طور پہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ وائس چیئرمین جو ہیں ان کے بھی نام شامل ہیں۔ لاہور پولیس نے 1700 سے زائد ورکروں اور رہنماؤں کو ابھی تک گرفتار کیا ہے، اور ابھی ان کی گرفتاری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سختی سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، ان کو بھی فوری طور پر فہرست کے مطابق جو لوگ ہیں وہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور اعلیٰ افسران نے گرفتاری کا ٹاسک جو ہے وہ لاہور پولیس کو سونپ دیا ہے۔ جتنے لوگ اس معاملے میں اس میں مددگار ثابت ہوئے، سہولتکار ثابت ہوئے، ان کو بھی حراست میں لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے مجاہد، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ مجاہد۔ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے مختلف مقدمات میں عبوری ضمانتوں پر سماعت کا معاملہ ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں عمران خان کی 2 جون تک عبوری ضمانت منظور کی گئی ہے۔ عدالت نے عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے۔ زمان پارک جلاؤ گھراؤ اور ضلع شاہ قتل کیس میں عبوری ضمانتوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اے ٹی سی عدالت 2 جون کو ضمانتوں پر فیصلہ سنائے گی۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں ابو بکر طارق سے۔ جی ابو بکر۔ جی بالکل، ابتدائی دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کی گئی ہیں، اور ضلع شاہ قتل کیس بھی اس میں شامل ہے، جس میں عمران خان کی 3 مقدمات ہیں، جس میں 2 جون تک عبوری ضمانتیں منظور کی گئی ہیں۔ عدالت نے عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے،
जो 9 मई के अफसोसनाक वाक़या हैं जिसमें इमरान खान को शामिल किया गया है, उसके अंदर अदालत ने जो है उनकी अबूरी जमानत 2 जून तक मंजूर की है, जबकि जो दीगर 2 मुकदमात हैं, जिले शाह कत्ल केस और दूसरा जलाओ घराओ केस में उनकी जो जमानतें हैं उस पर फैसला महफूज किया है, जो कि 2 जून को सुनाया जाएगा। उनके वकला की जानिब से आज अदालत में तवील दलाइल जो है वो जारी रहे और अदालत में उनके वकील सलमान सफदर ने ये बताया कि DIG को जख्मी करने वाले शख्स को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि कोई भी शख्स जमान पार्क में उस वक्त जो था जिसके ऊपर 2000 से 2500 अफराद जो है वो FIR में मौजूद है, FIR में उनका नाम शामिल है, जबकि इमरान खान पे इल्जाम है कि उन्होंने इन सब अफराद को उकसाया और पुलिस पर हमला करने का कहा, जबकि ऐसा देखा जाता है कि किसी भी शख्स को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया। 140 मुकदमात इमरान खान के ऊपर पूरे मुल्क में हैं, लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि सारे मुकदमात के जो मुद्दई हैं वो पुलिस जो है वो एहलकार खुद है, कोई भी प्राइवेट कंप्लेनेंट जो है वो उनके मुकदमात को लेके नहीं आया। मजीद दलाइल देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को इस्तेमाल किया गया है और ऐसे काम जो है वो माजी में भी होते गए हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार इमरान खान जो है वो अपने घर से निकले तक नहीं, किसी से बात नहीं की, कोई पब्लिक जो कोई अनाउंसमेंट है वो भी नहीं की, लेकिन उनको तमाम मुकदमात में जो है वो डाला गया है और चूंकि उनको उनके ऊपर इल्जाम है ये, ताकि इस वजह से मजीद उनकी जो जमानत है वो मंजूर की जाए। ताकि अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया है और जिले शाह कत्ल केस और जलाओ घराओ केस में 2 जून तक तोसी की गई है, उनकी जो जमानत है उसको 2 जून को फैसला सुनाया जाएगा। जिले शाह कत्ल केस के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने FIR अदालत में पढ़ के सुनाई, इसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जिले शाह को जो है वो FIR में ये बताया गया है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में 2 शख्स को बुलाया और उनसे पूछा, जिन्होंने ये कहा कि हमारी गाड़ी के साथ एक शख्स टकराया और उसको जो पुल पे जब टकराया तो उसको हमने उठाया और अस्पताल ले गए। अस्पताल जाके देखा तो डॉक्टरों ने कहा कि ये जिले शाह नामी शख्स है और ये जो है वो वफात पा चुका है। जिसके बाद अदालत में ये भी कहा गया कि जिले शाह को मजीद जो है वो ठोकरें लगी और फिर बताया गया कि पुलिस के तशद्दुद से जो है वो कत्ल हुआ। 3 किस्म के मुख्तलिफ बयानात जो है वो जिले शाह कत्ल केस में दिए जा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि उसके ऊपर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो गेम चेंजर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये बताया है कि जिले शाह जो है उसके ऊपर काफी तशद्दुद किया गया है, इवन कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके ऊपर जो है वो जो इंसान को रोंदे और इस तरह उसके ऊपर जो है वो निशानात और सारे तशद्दुद के मकामात हों। ताहम अदालत ने फैसला महफूज करते हुए समाअत 2 जून तक मुलतवी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर तारिक तफसीलन अपडेट करने का। इमरान खान की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर दायर एतराज़ात पर समाअत जस्टिस अली ज़िया बाजवा की दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। आपको बता रहे हैं कि इमरान खान की अबूरी दरख्वास्त से जमानत पर दायर एतराज़ात पर समाअत का ये मामला है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत, जबकि अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत से माजरत करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इमरान खान की अबूरी दरख्वास्त से जमानत पर दायर एतराज़ात पर समाअत का ये मामला है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की दरख्वास्त पर समाअत करने से माजरत। तो खबर ये है कि निगरान वज़ीर पंजाब ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों की निशानदही करने वालों के लिए नकद इनामात की मंजूरी दे दी है। मोहसिन नकवी ने मफरूर शरपसंदों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। देखिए हसन रजा की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में आला सतह का इजलास हुआ। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वाक़यात में मुलव्विस मुलजिमान की निशानदही करने वालों के लिए नकद इनामात की मंजूरी दी गई। इजलास में ISI के दफ्तर पर हमले के नामजद मुलजिमान की गैर कानूनी सहूलतकारी पर तशवीश का इजहार किया गया। दहशत गर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी बहम पहुँचाने पर एक जज के खिलाफ ऑफिशियल रेफरेंस भेजने का फैसला भी किया गया है। नामजद मुलजिमान की गैर कानूनी और गैर आईनी सहूलतकारी का फैसला भी चैलेंज किया जाएगा।
इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुलजिमान की गिरफ्तारी और शनाख्त को जियो फेंसिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और नादरा के जरिए यकीनी बनाया जा रहा है। टॉप लीडरशिप से टेलीफोनिक राब्ते के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ रहे हैं। लाहौर में राबते की 628 कॉल्स ट्रेस हो चुकी हैं। इजलास में नामजद मुलजिमान की सहूलतकारी को इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया गया। निगरान वज़ीर आला ने शरपसंदों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की भरपूर पैरवी का हुक्म दिया। मुतालिका कमिश्नर्स और RPOs को प्रोसिक्यूशन के अमल का जायजा लेने के लिए रोजाना मीटिंग करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी की गई। इजलास में निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG और दीगर मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ हसन रजा, लाहौर न्यूज़। एजाज चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एजाज चौधरी की फैमिली को हरासा करने से रोक दिया। अदालत का एजाज चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म जस्टिस फारूक हैदर ने तैमूर चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि एजाज चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एजाज चौधरी को फैमिली को हरासा करने से रोक दिया है, तो वहीं अदालत का एजाज चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म है। जस्टिस फारूक हैदर ने तैमूर चौधरी की दरख्वास्त पर यह समाअत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एजाज चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। तो वहीं IG पंजाब ने 7 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं। DPO ननकाना एजाज रशीद को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है, जबकि मोहम्मद रिजवान अहमद को SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है और इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। बिल्कुल, पंजाब पुलिस में तबादले किए गए हैं और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 7 अफसरान के तबादले किए हैं, जिनका नोटिफिकेशन भी IG पंजाब ने जारी कर दिया है। तकर्री के मुंसर साद अजीज को DPO नानकाना साहिब तैनात कर दिया गया है। DPO नानकाना एजाज रशीद को सेंट्रल पुलिस ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। मोहम्मद रिजवान अहमद को SSP ऑपरेशन फैसलाबाद की खाली सीट पर तैनात किया गया है। SSP ऑपरेशन फैसलाबाद को चंद रोज पहले जो है वो हटाया गया। उसके बाद जो है मोहम्मद रिजवान अहमद को वहाँ पर SSP ऑपरेशन फैसलाबाद तैनात किया गया है। असमान मनीर को SP लैलपुर टाउन फैसलाबाद तैनात किया गया है। शमसुल हक को SP सदर फैसलाबाद तैनात किया गया है। खालिद रशीद को SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद की सीट पर जो है वो तैनात किया गया है। मिर्जा अंजम कमाल को एडिशनल SP DG खां तैनात किया गया है। IG पंजाब ने तमाम अफसरान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम अफसरान को फौरी अपने नए उद्यों का जो चार्ज है वो लेने का जो हुक्म है वो भी जारी किया है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के केस की समाअत का ये मामला है। स्मोक रूल्स असम्बली से मंजूर न होने पर जस्टिस शाहिद करीम बरहम। स्मोक ही असल एमरजेंसी है, स्मोक का तदारुक बहुत ज़रूरी है। जस्टिस शाहिद करीम का फसलों को आग लगाने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। स्मोक के तदारुक के केस की ये समाअत हुई है। स्मोक रूल्स असम्बली से मंजूर ना होने पर जस्टिस शाहिद करीम बरहम हुए। स्मोक ही असल एमरजेंसी है और स्मोक का तदारुक भी बहुत ज़रूरी है। जस्टिस शाहिद करीम का फसलों को आग लगाने वालों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई का हुक्म। आपको बताएं कि लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर के तय खाने में आतिशज़दगी का ये वाक़या पेश आया है। सेंटर में आज नवी जमात का इस्लामियात का पर्चा भी था और तय खाने में जवाबी कॉपियों का स्टॉक भी मौजूद था। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। आज बिल्कुल 1.5 घंटा कबल जो है ये आतिशबाजी का वाकया पेश आया था और ये लॉरेंस रोड पर मौजूद जो लाहौर बोर्ड का मरकजी इम्तिहानी सेंटर है वहाँ के बेसमेंट में ये आग लगी थी और बेसमेंट में जो है वो जवाबी कापियों का स्टॉक मौजूद था और पुरानी रद्दी जो है वो मौजूद थी। तो जैसे ही वाकया पेश आया है तो इंतजामिया की जानिब से जो है वो फायर ब्रिगेड के अमले को बुलाया गया और 2 फायर टेंडर गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने आग को काबू पाया। इस मौके पर कंट्रोलर और चेयरमैन और दीगर हुकाम मौजूद थे और अब जो है आग पर काबू पा लिया गया है और जो जवाबी कापियों का स्टॉक था उसको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। शुक्रिया आतिफ। वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे को ब्रेकें लग गई। लाहौर में कूड़े से 70 मेगावाट बिजली तैयार का मंसूबा लटक गया। नॉर्वे, जर्मनी और चीन से होने वाले MU पर परवान ना चढ़ सके। 4 माह कबल फाल होने वाले फंड्स अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान, क्या वजूहात सामने आई हैं इसकी?
دیکھیں رمناز، لاہور شہر میں روزانہ 5500 میٹرک ٹن کوڑا پروڈیوس ہوتا ہے اور اس کے جو انرجی ہے وہ بڑی جلدی جو تیار ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے ایک منصوبہ سازی کی گئی تھی 4 ماہ قبل، جس کے لیے ویسٹ ٹو انرجی کا اس کو نام دیا گیا، جو کہ یہ منصوبہ بحال ہوا، میٹنگ ہوئی، مگر اب یہ صورتحال ہوئی ہے کہ جو اجلاس ہیں وہ گفتن نشستن بحاثن کی نظر ہو چکے ہیں۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے صوبہ بھر میں ویسٹ ٹو انرجی منصوبہ جو ہے یہ تیار کیا تھا، جو کہ اب سروی کا شکار ہے۔ 4 ماہ قبل فعال ہونے والا فنڈ جو ہے وہ بھی اکاؤنٹ سیز کا شکار ہے، جبکہ لاہور میں کوڑے سے 70 میگا واٹ بجلی تیار ہونے کا منصوبہ اب لٹک گیا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان، سیالکوٹ اور بہاولپور سے موصول ہونے والی میونسپل سالڈ ویسٹ سے بجلی پیدا کرنے کی ورکنگ روک دی گئی ہے۔ اس والے سے اگر دیکھا جائے تو منصوبے کے ممکنہ سرمایہ کاروں کے معاہدہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ ناروے، جرمنی اور چائنا سے ہونے والے ایم او یوز جو ہے وہ ابھی تک پروان نہیں چڑھ سکے۔ منصوبے کا مالیاتی اور آپریشن ماڈل نئے احکامات تک سست روی کا شکار ہے۔ سرمایہ کار اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے آپریشن پلاننگ ونگز بھی غیر فعال ہو چکے ہیں۔ حتمی فیصلے کے لیے جو بریک بینی سے غور و خوض اور مشاورتی 15 اجلاس کروائے گئے، جس میں محکمہ توانائی، اسٹیک ہولڈرز بشمول ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سے توانائی اور ماحولیات کے ماہرین کو مدعو کر کے ایک وسیع سطح پر کھلا مشاورتی اجلاس بھی جو ہے وہ اب سست روی کا شکار ہے۔ 4 ماہ کی کوششوں کے بعد ویسٹ ٹو انرجی منصوبہ صرف اور صرف اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کاغذوں تک، فائلوں تک محدود ہو چکا ہے۔ ویسٹ ٹو انرجی منصوبوں پر ورکنگ جاری ہے، یہ کہنا ہے سیکٹری بلدیات پنجاب ڈاکٹر ارشاد احمد کا، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلد اچھی خبر جو ہے وہ سنائیں گے۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ ایل ڈی سے خبر یہ ہے کہ ایل ڈی افسران نے دفاتر میں تاخیر سے آنا معمول بنا لیا ہے۔ سینئر ڈائریکٹرز اور دیگر افسران بایو میٹرک حاصل نہ لگانے پر شکنجے میں آ گئے ہیں۔ تاخیر سے آنے پر ایل ڈی کے 27 آفیسرز کو وارننگ نوٹس بھی جاری کیے گئے، تو وہیں اب تک 50 افسران کو بروقت دفاتر نہ پہنچنے پر وارننگ نوٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین۔ افسران کو وارننگ نوٹسز بھی جاری ہوئے، مگر ان افسران نے اپنی روش نہ بدلی۔ ایل ڈی افسران نے دفاتر میں تاخیر سے آنا معمول بنا لیا ہے۔ بر وقت دفاتر پہنچنے پر ایل ڈی افسران عمل پیرا نہ ہو سکے۔ ڈی پی ایل ڈی اے نے 18 اپریل کو نوٹیفکیشن کے ذریعے صبح 9 بجے آفس پہنچنے کا محکمانہ حکم نامہ جاری کیا، لیکن ایل ڈی اے کے بیشتر افسران نے بر وقت حاضری پر غیر سنجیدہ رویہ اپنایا۔ دفاتر میں تاخیر سے آنے پر ایل ڈی اے کے مزید 27 افسران کو وارننگ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور اب تک 50 افسران کو دفاتر بر وقت نہ پہنچنے پر یہ وارننگ نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر ایڈمن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ڈائریکٹر ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ فراز اسد اللہ چیمہ، جہانزیب حسن اور ہمانہ سعید کو وارننگ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر ظافیہ مجید، سندس اقبال، سندس ہارون، عثمان طارق، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد نفیس، محمد زبیر اور محمد عمر کو بھی وارننگ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹس کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نبیل اختر، ہارون یوسف، محمد شہباز، ہمایوں شہباز، اس کے علاوہ ٹاؤن پلاننگ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمار یاسر، محمد عادل، عاطف امتیاز اور حافظ اکرام کو بھی وارننگ بہت نوٹس شکریہ جاری سین کیے اپڈیٹ گئے۔ کرنے کا۔ نمبر بہتر کرنے کے خواہشمند امیدواروں کے لیے اچھی خبر، چیئرمین پنجاب بورڈ کمیٹی نے اہم تبدیلی کی منظوری دے دی۔ اب امیدوار سنگل پارٹ میں نمبر بہتر کرنے کے لیے پیپر دے سکیں گے۔ اسی پر بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ بتائیے عاطف۔ جی بالکل، یہ جو ہے پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین کی جانب سے اہم تبدیلی کی منظوری دی گئی ہے اور نمبر بہتر کرنے کے خواہش مند جو امیدوار ہیں ان کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے۔ پہلے یہ قانون موجود تھا کہ دونوں پارٹ کے جو پیپر دینے ہوتے تھے، اگر طلبہ نے جو ہے نمبر امپروو کرنا ہوتا تھا یا سنگل پیپر دینا ہوتا تھا، لیکن اب یہ سہولت دی گئی ہے کہ سنگل پارٹ میں بھی جو ہے وہ طلبہ نمبروں کی بہتری کے لیے پیپر دے سکیں گے۔ اس حوالے سے پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین نے منظوری دے دی اور اب تمام تعلیمی بورڈ جو ہیں وہ اس کی اپنے اپنے بورڈ آف گورنر سے منظوری لے کر اس فیصلے کا جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ اور جو ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور بورڈ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیسے سیکنڈ اینول سے پہلے بی او جی سے اس کی منظوری لے لی جائے گی اور سیکنڈ اینول میں طلبہ کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ پارٹ 1 یا سنگل پارٹ کے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر بلدیات ابراہیم مراد سے پارکنگ کمپنی کے نئے سی ای او بلال فیروز نے ملاقات کی ہے۔ پارکنگ فیس حکومت کے مقرر کردہ ریٹ کے مطابق وصول کیے جائے۔ ابراہیم مراد کی پارکنگ فیس کے نام پر شہریوں کو لوٹنے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔
देखिए ये मामला 2 रोज कबल लाहौर न्यूज़ ने भी उठाया था कि पार्किंग फीस जो है वो ज़्यादा ली जा रही है, ओवर चार्जिंग की जा रही है, जबकि रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा खासा कमी नजर आई है। इस वाले से ही निगरान वज़ीर बलदियात इब्राहिम हसन मुराद ने लाहौर पार्किंग कंपनी के नए तैनात होने वाले CEO बिलाल सरोर से मुलाकात की है। इब्राहिम मुराद ने पार्किंग साइट पर ओवर चार्जिंग करने वालों से जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया है, जबकि पार्किंग फीस के नाम पर शहरियों को लूटने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने के हवाले से अहकाम दिए हैं। निगरान वज़ीर बलदियात ने हदायत जारी कर दी है कि पार्किंग कंपनी के मामला में बेज़ाब्तियों के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, जबकि पार्किंग का निज़ाम तरक्याती मवाली के तर्ज पर बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाए। पार्किंग कंपनी की कंप्यूटराइजेशन और आउटसोर्सिंग समेत दीगर तजावीज़ भी सामने लेकर आई जाए, जबकि पार्किंग कंपनी के मामला में शनाख्ती यकीनी बनाया जाए। पार्किंग टिकट्स का डिज़ाइन तब्दील हो चुका है, पुराने पार्किंग टिकट जारी करके शहरियों को लूटने वालों को पुलिस के हवाले किया जाए। इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि पार्किंग फीस के रेट्स नुमाया तौर पर अवेदा किए जाए। पार्किंग टिकट्स के QR कोड से पार्किंग फीस का रेट मालूम किया जा सकता है, जबकि पार्किंग फीस हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक वसूल की जा रही है और पार्किंग फीस को सरकारी खजाने में जमा न करवाने वालों के खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाए। मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 10 रुपये जबकि गाड़ी की पार्किंग फीस 30 रुपये है। शहरी जायद रकम अदा न करें। इस वजह से जहाँ जहाँ पर भी शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, शुक्रिया इमरान। असातिज़ा के लिए बुरी खबर, असातिज़ा को इंक्रीमेंट वापस करना होगा। टाइम स्केल प्रमोशन के बाद इंक्रीमेंट लेने वाले असातिज़ा से इंक्रीमेंट वापस लिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी से सर्टिफिकेट मांग लिया। मज़ीद बताएंगे आतिफ परवेज। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, टाइम स्केल हासिल करने के बाद जो है सैकड़ों असातिज़ा को जो है जो इंक्रीमेंट मिले थे और इनसे इंक्रीमेंट से जो है वो मुस्तफीद हुए थे, लेकिन अब महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि टाइम स्केल जो प्रमोशन है वो असातिज़ा की नहीं बनती, इसको वापस लिया जाएगा। और इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को ये पाबंद किया गया है कि वो जो इंक्रीमेंट लिया गया था वो असातिज़ा से वापस लिया जाए। इनमें हाजिर और इसके साथ साथ रिटायर्ड असातिज़ा जो हैं उनसे ये इंक्रीमेंट वापस लिया जाएगा और तमाम अथॉरिटीज़ को कहा गया है कि इंक्रीमेंट लेकर ये सर्टिफिकेट महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाए जाएं। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। लेस्को इंतजामिया के दावों के बरक्स मीटर्स का शॉर्टफॉल कम ना हो सका। लेस्को रीजन में सिंगल और 3 फेज मीटर्स की कमी है। सार्फिन नए कनेक्शंस लगवाने और ख़राब मीटर्स तब्दील करवाने के लिए ख्वार हो रहे हैं। मुतअद्दिद सार्फिन 2 माह से डिमांडेड नोटिस अदा करने के बावजूद कनेक्शन से महरूम हैं। मज़ीद जानते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल लेस्को इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद दावे किए गए हैं कि मीटर का शॉर्टफॉल जो है वो कम हो रहा है और मीटर जो है वो नए खरीदे जा रहे हैं, मगर इन तमाम तर दावों के बरक्स मीटर का शॉर्टफॉल जो है वो बदस्तूर कायम है। लेस्को रीजन में सिंगल और 3 फेज मीटर जो है वो उनकी शदीद कमी का सामना है। सार्फिन न्यू कनेक्शन लगवाने और खराब मीटर तब्दील करवाने के लिए ख्वार हो गए हैं। ज़राए कहना है मुतअद्दिद सार्फिन 2 माह से डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद कनेक्शन से महरूम है, जबकि मीटर की कमी के बायस हजारों खराब मीटर्स भी तब्दील नहीं हो सके। मीटर खराब होने के बाद सार्फिन को एवरेज बिलिंग के साथ डिडक्शन बिल भी चार्ज किया जा रहा है और उन्हें थोड़ी जो है वो अमाउंट चार्ज की जा रही है, जिससे सार्फिन परेशान है। जी बहुत शुक्रिया फ़ाहद। LPG माफिया बेलगाम इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम। लाहौर में LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहर में LPG 270 से 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी। ओगरा ने रवां माह के लिए LPG की कीमत 234 से फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। आपको बता रहे हैं कि LPG माफिया बेलगाम है। इंतजामिया सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। लाहौर में LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहर में LPG 270 से 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी है। ओगरा ने रवां माह के लिए LPG की कीमत 234 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है। लाहौर में LPG की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर में LPG 270 से 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी हैं। आपको बताएं कि ओगरा ने रवां माह के लिए LPG की कीमत 234 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है। महंगाई का जोर ना टूट सका। सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी हैं। आपको बताएं कि ब्रॉयलर गोश्त 15 रुपये सस्ता होकर भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर।
महंगाई ट्रेन का नॉन स्टॉप सफर जारी है। सब्जियां, फल, ब्रायलर गोश्त गरीब की पहुंच से दूर। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 70 रुपए, लीमू देसी 550 रुपए, शिमला मिर्च 70 रुपए फी किलो है, जबकि बंद गोभी 50 रुपए, भिंडी 180 रुपए, मटर 300 रुपए और घिया तोरी 100 रुपए किलो में दस्तयाब है। महंगाई से फलों का जायका भी फीका पड़ने लगा। सरकारी निर्खनामे में 6 फल महंगे कर दिए गए। मार्केट में सेब काला कुल्लू 480 रुपए, पपीता 280 रुपए, खरबूजा 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आम सिंदड़ी 380 रुपए, खजूर ईरानी 550 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। केले दर्जा अव्वल 440 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। ब्रायलर गोश्त 15 रुपए कमी के बावजूद 624 रुपए फी किलो है। मार्केट में सरकारी निर्खनामों पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शहर लाहौर के बासियों को साफ पानी की फराहमी में वासा की गफलत। लाहौर के बेशतर इलाकों में पीने का गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। बेगमपुरा के इलाका कच्ची आबादी, महमूदाबाद के रहायशी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। कच्ची आबादी महमूदाबाद के रहायशियों के घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इलाका मकीन वासा की मुबैना गफलत के सबब गंदा पानी पीने पर मजबूर। मज़ीद बताएंगे सैनुलाबुद्दीन। बताइए सैन। के बासियों को साफ पानी की फराहमी में वासा हुकाम की मुबैना गफलत सामने आई है कि लाहौर के बेशतर इलाकों में पीने का गंदा पानी फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से लाहौर न्यूज़ के सर्वे में इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि बेगमपुरा का ये इलाका है कच्ची आबादी महमूदाबाद, जिसके रिहायशी पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है। कच्ची आबादी महमूदाबाद के रिहायशियों के घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जबकि इलाका मकीन वासा की मुबैना गफलत के सबब ये गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि वासा हुकाम की जानिब से शिकायत का बर वक्त अजाला ना करने की वजह से इलाके में हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। बेगमपुरा के इलाका कच्ची आबादी महमूदाबाद में पानी की फराहमी के लिए 3 ट्यूबवेल्स और फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को साफ पानी मुयसर नहीं है। इलाका मकीनों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब और MP वासा से इस अमर की अपील की गई है कि मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको पीने के साफ पानी की बुनियादी सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ठीक है जैन, ये भी बताइएगा वासा हुकाम क्या कहते हैं इस मुतालिक, कब तक इसको यकीनी बना दिया जाएगा और बर वक्त मनसूबों पर काम कब होगा? इस हवाले से MP वासा गुफरान अहमद के नोटिस में इस अमर को लाया गया, तो उनकी जानिब से इस अमर की यकीन दहानी करवाई गई कि जिस इलाके से गंदे पानी के हवाले से शिकायत आ रही हैं, यहाँ से मसाइल को फिल वक्त दूर किया जाएगा। MP वासा की जानिब से मुतल्लिका डायरेक्टर और एक्सीएन को ये अहकाम जारी किए गए हैं कि इलाके का सर्वे किया जाए और जिन मुकामात पर गंदे पानी की फराहमी की शिकायत मौसूल हो रही हैं, इनका अजाला किया जाए। अच्छा जैन, ये भी बताएगा इसके अलावा किन किन इलाकों में ये मसला तहाल बरकरार है? गुज़िश्ता रोज भी इस अमर को हाईलाइट किया गया था कि लाहौर के बेशतर इलाकों में जो साफ पानी की फराहमी और गंदे पानी के निकास के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी में इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ पानी की तलब भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वासा हुकाम ने रवा माली साल में इस चीज़ का ऐलान किया था कि शहर में। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया ज़ैन। तो खबर ये है कि नॉन टीचिंग स्टाफ का डेटा भी HRMS में डाला जाएगा और महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत भी जारी कर दी हैं। तमाम मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का डेटा ऑनलाइन होगा। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के बाद अब नॉन टीचिंग स्टाफ का जो तमाम डाटा है वो HRMS में डालने का फैसला कर लिया और इस हवाले से एजुकेशन अथॉरिटीज़ और तमाम जो ज़ेली डिपार्टमेंट हैं, जिसमें टैक्स बोर्ड है, PMIU है और जो दानिश स्कूल हैं, इन तमाम को ये कहा गया है कि फौरी तौर पर डाटा जो है वो HRMS में डाला जाए। पहले मरहले में डाटा ऐड किया जाएगा और दूसरे मरहले में इनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो भी इसमें ऐड की जाएंगी। तो इस का मकसद जो महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि इससे अच्छा जो नॉन टीचिंग स्टाफ की हवाले से जो फैसले हैं, खाली सीटों के हवाले से भी पता लगेगा और काम में भी एफिशिएंसी आएगी। बहुत शुक्रिया आतिफ। वजारत मजहबी अमूर का आज़मीन को 55,000 रुपये फ़ीकस वापस करने का फैसला। सरकारी हज स्कीम के तहत जाने वाले आज़मीन मुतल्लिका बैंक से रकम वसूल कर सकते हैं। आज़मीन हज रवानगी से कबल रकम वसूल कर लें, बाद में वापस नहीं मिलेगी।
आपको बता रहे हैं कि वजारत मज़हबी अमूर का आसमीन को 55,000 रुपये फ़ीस वापस करने का ये फैसला है। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। बताइए राहिल। राहिल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि 55,000 जो फ़ीस है वो वापस करने का फैसला किया गया है। कुर्बानी के लिए 55,000 रुपए फ़ीस वापस करने का फैसला किया है। आदमी ये रकम रवानगी से कबल अपने मुतलका बैंक से बजरिया कैश अकाउंट हासिल कर सकेंगे। रवानगी से कबल बजरिया मुतलका बैंक कुर्बानी रकूम लेना जरूरी है। बाद में ये रकम जो है वो वापस नहीं मिलेगी। मक्का मुकरमा में सरकारी रहाइश गाँव के नज़दीक कूपन खरीदने की सहूलत मुहैया की जाएगी। शीखवार बच्चे और फंड लेने वाले कुर्बानी की रकम के अहल नहीं है। इस हवाले से ये एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया कि दुश्वारी की सूरत में शिकायत जो नंबर दिया गया उससे जो है वो राब्ता करके किया जा सकता है, ताकि जो मसाइल हैं किसी भी आज़मीन हज को वो फौरी तौर पर हल किए जा सके। ठीक है राहिल, बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब की हिदायत पर पुलिस फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग का ये अमल है जो जारी है। अब तक 58% से ज़ायद अफसरान और एहलकारों की हेल्थ स्क्रीनिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। हेपेटाइटिस बी और सी, ब्लड शुगर और कैंसर जैसी मूजी बीमारियों की तशखीस भी हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आईजी पंजाब की हिदायत पर पुलिस फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग का अमल जारी है। अब तक 58% से ज़ायद अफसरान और एहलकारों की हेल्थ स्क्रीनिंग मुकम्मल हो चुकी है। हेपेटाइटिस बी और सी, ब्लड शुगर और कैंसर जैसी मूजी बीमारियों की तशखीस है। आपको बता रहे हैं कि आईजी पंजाब की हिदायत पर पुलिस फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग का अमल जारी है। बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में वेलफेयर का जो अमल है वो आईजी पंजाब की हिदायत पर जारी है और अब जो है वो हेल्थ स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया गया है। आईजी पंजाब की तरफ से 15 मई तक 50% पोस्ट की हेल्थ स्क्रीनिंग का जो टारगेट है वो दिया गया था। अब तक जो है वो 58% से ज्यादा 1,20,000 अफसरान और एहलकारों को हेल्थ स्क्रीनिंग का जो अमल है वो मुकम्मल किया जा चुका है। डीएजी एस्टेब्लिशमेंट अनाम वहीद का इस हवाले से कहना है कि हेल्थ स्क्रीनिंग के नतीजे में अफसरान और एहलकारों को मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला के बारे में हकाइक जो है वो सामने आए हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी, इसके अलावा ब्लड शुगर, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसी मौजूद बीमारियों की तशखीस की हुई है। डीएजी एस्टेब्लिशमेंट का मजीद कहना था कि हेल्थ स्क्रीनिंग का जो अमल है वो जारी है। मुतासा अफसरान और एहलकारों के इलाज अमराज का जो सिलसिला है वो भी साथ ही शुरू कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि बीमारी की बरवक्त तशखीस और इलाज से अफसरान और एहलकारों की सर्विस डिलीवरी है उसमें बेहतरी आएगी और फोर्स की हेल्थ स्क्रीनिंग का जो अमल है उनका कहना था कि सालाना बुनियादों पर जो है वो जारी रहेगा। जी शुक्रिया मुदस्सिर। लाहौर समेत पंजाब के 12 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम का 5वां रोज़ है। लाहौर में 16,57,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। बिल्कुल, पोलियो की रोकथाम के हवाले से लाहौर समेत पंजाब के 12 अजला में पोलियो मुहिम का आज 5वां रोज़ है और पहले 4 रोज़ के अंदर तकरीबन 96 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे, इनको पोलियो से ड्रॉप के जो कतरे हैं ये पिलाए जा चुके हैं। जबकि लाहौर का जो टारगेट था वो 20 लाख था। अब तक 4 रोज़ के अंदर 16 लाख से ज़ायद जो बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि लाहौर में इस वक्त पोलियो की क्या सूरत हाल है और कितने दिन मज़ीद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। जी, लाहौर में जी इस वक्त तकरीबन 16 लाख के करीब बच्चों को जो जी कतरे पिला दिए गए हैं। लाहौर का टारगेट 20 लाख के करीब है। लाहौर के अलावा 12 ज़िला के अंदर जो है पंजाब की ये कैंपेन जारी है, जहाँ पर 97 लाख के करीब लोगों को ना बच्चों को कतरे पिला दिए गए हैं। और अभी 2 दिन हमारे कैचअप, आज 5वां दिन है और 2 दिन हमारे कैचअप के हैं, जिसमें हम जो रह जाने वाले बच्चे हैं 5 साल से छोटे उनको हम कतरे पिलाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर के अंदर पंजाब भर में जो माहौलियाती नमूने जो कि मस्बत आया करते थे या मनफी हो चुके हैं और महकमा सेहत की जानिब से जो पोलियो मुहिम है इनका आगाज़ भी ज़्यादा किया जा रहा है ताकि लाहौर समेत पंजाब भर को पोलियो फ्री बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोज़ा पाकिस्तान केमिकल एक्सपो का आज दूसरा रोज़ है। बैनुल-अक़वामी एक्सपो में 125 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज ने स्टॉल्स भी लगाए हैं। केमिकल से मुतालिक एक्सपो की तफसीलात नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से जान लेते हैं। बताइए अब्दुल कादिर।
जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर लाहौर में पाकिस्तान केमिकल एक्सपो का आज दूसरा रोज़ है। 3 रोज़ा ये जो एक्सपो है आज इसका दूसरा रोज़ है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से जो है स्टॉल लगाए गए हैं, जो कि कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियाँ जो हैं उनकी जानिब से 120 से ज़ायद जो है यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, केमिकल, कोटिंग और पेंट के हवाले से, और साथ ही साथ लैब इक्विपमेंट के हवाले से जो है यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पे B2B बिज़नेस टू बिज़नेस जो है मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और केमिकल शोबा के इंडस्ट्रियलिस्ट फयाज हैदर मौजूद है। इन्हीं से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। फयाज साहब, ये बताएगा कि केमिकल का शोबा जो है बड़ा पेचीदा सा होता है, केमिकल के शोबे में क्या क्या कुछ आ जाता है, क्योंकि आज की एक्सपो के हवाले से क्या कहेंगे? केमिकल का जो शोबा है, केमिकल एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें प्लास्टिक, जूती के रॉ मटेरियल, उसके पेंट के रॉ मटेरियल, हर किस्म की जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें केमिकल में आती हैं, जो केमिकल के से बनती हैं। और स्टोन्स, माइन एंड मिनरल भी केमिकल्स में आते हैं। तो इस एग्जीबिशन का मकसद पेंट, प्लास्टिक, फूड, फार्मा सबको एक जगह इकट्ठा करके रॉ मटेरियल बायर, सेलर, वेंडर, सप्लायर सबको एक छत के नीचे इकट्ठा करना है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा, सब तमाम कॉन्टिनेंट से यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं और कस्टमर और सेलर और वेंडर सब एक दूसरे के करीब करीब हैं। आज बिल्कुल आपने जो है फयाज हैदर की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि केमिकल का शोबा जो पाकिस्तान में है वो हुकूमती जो है तवज्जो या सपोर्ट के बगैर जो है वो तरक्की कर रहा है, और ये तमाम शोबे जो हैं यहाँ पर इस वक्त एक्सपो सेंटर में जो है एक छत तले जमा है। आज दूसरा रोज़ है, 3 रोज़ा नुमाइश का सिलसिला जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाहौर का मौसम एक बार फिर गर्म होने लगा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के अहवाल जान लेते हैं सामिया सईद से। बताइए सामिया। लाहौर का मौसम जो है वो आज भी गर्म रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं बात करूं दर्जा हरारत के हवाले से, तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बारिश का जो है वो अभी तक कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। तो यही देखा जाएगा कि आज सारा दिन जो मौसम है वो इसी तरीके से गर्म रहेगा, लेकिन साथ साथ जो है वो ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो भी चलती रहेंगी। महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक आज जो हवा की रफ्तार है वो 11 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। तो यही देखा जा रहा है कि दिन के वक्त जो मौसम होता है वो गर्म होता है, साथ साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो मौसम जो है वो एक बार फिर से खुशगवार दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो जोहर टाउन का 108 रिकॉर्ड किया गया है, DHA फेज़ 5 का 133 रिकॉर्ड किया गया है। तो यही देखा जा रहा है कि लाहौर शहर में जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी ने भी सर उठाना शुरू कर दिए हैं। यही देखा जाएगा आने वाले दिनों में कि सुबह टाइम जो है वो मौसम गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही शाम होगी ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और मौसम जो है वो एक बार फिर से खुशगवार हो जाएगा। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आपको बताएं कि वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से आज़मीन हज की वैक्सीनेशन का सिलसिला तहाल जारी है। हाजी कैंप में आज़मीन को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। एयरलाइंस और बैंक्स के नुमाइंदे भी मालूमात की फ़राहमी के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं राहील अली से। जी राहील। वज़ारत मज़हबी अमूर के ज़रिए तमाम सरकारी हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए हाजी कैंप में जो है वो मुख्तलिफ सहूलियात का जो है वो आगाज़ कर दिया गया। 1 विंडो के तहत यहाँ पर जो है वो आज़मीन हज को जो है वो सहूलियात दी जा रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे मुख्तलिफ काउंटर्स लगे हुए हैं जिसमें वैक्सीनेशन जो है वो आज़मीन हज की करवाई जा रही है। इसके अलावा जो हज के लिए सामान खरीदना उसके एक बाकायदा तौर पर काउंटर लगा हुआ है। मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी किस्म की मालूमात जो है वो फराहम की जा सके। मुख्तलिफ एयरलाइंस जो हैं वो उनके नुमाइंदे इधर मौजूद हैं ताकि एयरलाइंस के हवाले से किसी भी आज़मीन को जो है वो मालूमात दरकार हैं तो उनको मालूमात जो है वो फराहम की जा सके। और ख़ुसूसी तौर पर जो है वो इंतजाम किए गए थे ताकि लाहौर से जाने वाले तमाम जो आज़मीन हैं उनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का जो है वो सामना ना करना पड़े। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं आज़मीन, उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि इधर आप आए हैं, सहूलियात इधर कैसे हैं, किसी किस्म की परेशानी का सामना तो नहीं करना? नहीं सरकार, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। माशाल्लाह हम पहले भी ऐसे वैक्सीन लगवाने के लिए तो माशाल्लाह अच्छे इंतजाम थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। और आज भी हम आए माशाल्लाह, सबसे पहले उन्होंने हमें मशरूब पेश किया है, उसके साथ चाय भी है, उसके बाद उन्होंने हमें सामने काउंटर अलग अलग बने हुए हैं, इतना रश भी नहीं है।
तमाम सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं और ये 20 जून तक जो है ये कैंप जो है वो लगे रहेंगे ताकि जो आज़मीन जिसकी जिस वक्त की फ़्लाइट है वो यहाँ पर आकर जो है वो उसी के मुताबिक जो है वो अपना इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं और इसके अलावा अपने जो पासपोर्ट है और वीज़ा है वो भी जो है वो मौसूल कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने का। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को फौरी दलाइल देने से रोक दिया। अदालत के इलेक्शन कमीशन के वकील को अपनी बारी पर दलाइल देने की हिदायत लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाई 1 जून तक मुलतवी कर दी। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। बताइए अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर अदालत ने कार्रवाई 1 जून तक मुलतवी कर दी और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफर ने बताया कि इमरान खान मियाँ वाली से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ के बरक्स उन्हें नाअहल करार दिया। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था। तो इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी अपने दलाइल का आगाज़ किया तो अदालत ने उन्हें दलाइल से फौरी तौर पर रोक दिया और ये कहा कि पहले दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल सुने जाएंगे। बैरिस्टर सैयद अली जफर ने कहा कि इमरान खान ने हवाले से दरख्वास्त वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर रखा है, जिस पर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है हैरत है कि वो क्यों इतनी इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला नहीं कर रही। अदालत ने मजीद कार्रवाई 1 जून तक। ठीक है मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के LDA वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर का दौरा। वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर तामीर किया गया। एरिना सेंटर में इटालियन, अमरीकी, चाइनीज़ और मुग़लिया तर्ज के पवेलियन बनाए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का LDA वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर का दौरा। वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर तामीर किया गया है। एरिना सेंटर में इटालियन, अमरीकी, चाइनीज़ और मुग़लिया तर्ज के पवेलियन बनाए गए हैं। आपको अपडेट करें कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का LDA वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर का दौरा है। वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर तामीर किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने LDA वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर को इस मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग की गई, जिसमें बताया गया कि स्टेट ऑफ दी आर्ट वॉक एंड शॉप एरिना 130 कनाल पर तमीर किया गया है और बैनुल-अक़वामी तर्ज पर इसमें तमीरात की गई हैं, जिसमें इटालियन, अमेरिकन, चाइनीज, स्पेनिश और मुग़लिया तर्ज के पवेलियन बनाए गए हैं। ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि एरिना में कारोबार के लिए मुख्तलिफ साइज के 84 यूनिट और रूफटॉप रेस्टोरेंट के मौके भी मौजूद हैं, जबकि 500 से ज्यादा गाड़ियां पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है। इस मौका पर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से कहना था कि एरिना में बच्चों की तफरीह, जिप लाइन, रोलर कोस्टर, इसके अलावा दीगर जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं, जबकि LDA एरिना को ऑक्शन के लिए जल्द पेश कर दिया जाएगा। सरमायाकारी के लिए मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों से रब्ता किया जाएगा। मिस्टर लाहौर को चीफ इंजीनियर और एडिशनल DC हाउसिंग और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल DG हाउसिंग, डायरेक्टर हाउसिंग 10 और दीगर अफसर भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया सैन। इमरान खान के ज़िले शाह केस में अबूरी ज़मानत पर बतौर एतराज़ समाअत। इमरान खान जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत में पेश पहुंच गए। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार कहाँ हैं? अदालत का इस्तफसार। इमरान खान के वकील सलेमान सफदर की अदालत से कुछ वक्त देने की अपील। अदालत ने समाअत 10 मिनट तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि इमरान खान के ज़िले शाह केस में अबूरी ज़मानत पर बतौर एतराज़ समाअत का ये मामला है। इमरान खान जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की अदालत में पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार कहाँ है? अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, जिस पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर की अदालत से कुछ वक्त देने की अपील है। अदालत ने समाअत 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। इंतशार अंगेज तकरीर और पुलिस से लड़ाई झगड़े का ये केस है। जिला कचहरी अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने वकला के दलाइल तलब करते हुए समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी है। इंतशार अंगेज तकरीर और पुलिस से लड़ाई झगड़े का केस का ये मामला है। जिला कचहरी अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने वकील के दलाइल तलब करते हुए समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी है।
आपको अपडेट कर रहे हैं कि जिला कचहरी अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत ने वकला के दलाइल तलब करते हुए समाअत 26 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। इंतशार अंगेज तकरीर और पुलिस से लड़ाई झगड़े का ये केस था। जिला कचहरी अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ केस की समाअत हुई है और इस समाअत में अदालत ने वकला के दलाइल तलब करते हुए समाअत 26 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इंतशार अंगेज तकरीर पर लड़ाई झगड़े का ये केस है।